Are you able to see this screen? Yes, sir. Okay. So today's topic of discussion is array and functions. How do we define arrays in shell programming, Bash, and how can we make use of function concept? So here, suppose if I wish to use an array, so I have the option of declaring it with the command declare. Then let us suppose the name of array is ARR. So before that you have to put a -a option, that is associative array, and then let us suppose the variable that we have taken for array is ARR. Now we can assign or we can initialize the array by just assigning the values. See the difference in comparison to C++ or Java over here is we are not using curly braces, neither we are putting commas. So we are writing a double R is equal to, and then let us suppose we have defined four elements 12, 13, 14, 15. So all of them have got assigned to a double R variable. And now if I wish to access them one by one, so what I can do is I can write echo, then dollar, and then ARR. Then again the index value starts from 0 as it does happen in case of Java and C++. So we can start ARR 0 and then curly bracket close. So this is the way by which we access any array variable. Normally what is happening, we used to write ARR and then index value 0, 1, 2, 3 in that way. But here you know that every variable must be preceded with dollar sign. So here we are bound to write dollar, and the variable has to be written between curly braces. So you have to write within curly brace ARR and then the index value. So when I print, I am getting the first value of this array, that is 12. In a single go, if you wish to print all the values, so you can make use of this variable in this way. uh, by that time, now it is clear that in case of special variables like positional variables which we have studied earlier, like $0, $1, $3, and for that matter we have studied dollar star, dollar hash. So you know that star is basically for printing all the values that we have given from command line inside the program. And similar is the case of dollar at the rate of. And there, if you remember or recall, so there we are making use of hash just to find out the count of total values that we have passed on command line. So here when I write this, I am getting all the values in a single go on the screen. And if I wish to find out how many values actually have been assigned to this variable, so you need to put hash. Actually hash is doing what? At most of the time it is used for the purpose of counting. So ARR star is printing all the values, where hash is simply counting all the values which are supposed to be printed by ARR star. So we get the count on screen as 4. So this is the operation, like ARR star can be used to print all the values or to access all the values in a single go. Similarly, we can also make use of this hash ARR star just to count the number of values that we have entered on command line. तो इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं. और दूसरा यहाँ पे अगेन वी नेवर असाइन एनी टाइप टू दिस वेरिएबल array ARR. मतलब we are not defining whether this array is of integer type or float type or double type of string type. These are the contents which actually decide ki in what way this ARR is to be treated, and neither it is mandatory that you have to assign all the values in the way in which we have done it. I mean, it's also possible that we can write ARR 12, 13, 14, 15, and then after space we are writing Madan, then Mohan, then Malviya. So I mean, mixed type of values you can assign, but of course at the time of processing you have to take care ki what is the type or value that you are accessing as part of that array. तो अगर उसको न्यूमरल में आप जो न्यूमेरिक है उनके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर्ड है तो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर वो ऑपरेशन नहीं कर सकते. फिर कुछ और भी ऑपरेशंस हैं विच आर प्रीटी सिंपलर, like we can write echo, and let us suppose we are interested to start the index 0 and we wish to print only two values from that index.
So we are getting only 12 and 13. So the first value 0 is indicating the index of the array from where we wish to start the access of data, and total how many elements, that is the next value. तो अगर हम 0 देते हैं तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, और कितने एलिमेंट्स हैं वो अगला बता रहा है 2, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स वी हैव टू प्रिंट, वो 2 एलिमेंट वहां पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगे। सिमिलरली वी में टेक, अच्छा जरूरी नहीं कि आप डिक्लेयर माइनस ए से जो है इसको डिक्लेयर ही करें, आप डायरेक्ट भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं इन दिस वे। तो अगर मान लीजिए सपोज वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग व्हिच इज ऑफ मिक्स टाइप। अब again we are testing all those operations that we have performed earlier. So 4 elements are there because 12, 13 and the word Madan, and then of course Mohan Malviya, since they have been put between double inverted commas, so they will be treated as a single string. तो 4 elements हैं और index value is always starting from 0. So that is also possible that if I write ARR star 02, so we are still accessing 12 and 13. सॉरी, इसको मैं इसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना भूल गया, सो आई एम जस्ट चेंजिंग इट सो दैट यू कैन गेट द राइट आंसर। सो अगेन 12 and 13, क्योंकि नाउ वी आर रेफरिंग टू द str array instead of ARR, तो बाय मिस्टेक आई वाज in the previous access of command history from history, so there I have taken ARR, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोबारा से शो किया है। दूसरा, अगर मैं इसमें यहाँ पे लेट अस सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम सो मदन मोहन मालविया, बिकॉज इंडेक्स वैल्यू 2 पे जो है 0 पे 12 है, 1 पे 13 है, 14 पे मदन है, सॉरी 0 पे 12 है, 1 पे 13 है, और 2 पे मदन है, और 3 पे मोहन मालविया है। तो when we give two first two, so that first two indicates the index value, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है स्ट्रिंग से how many elements, so next argument says that 2, so 2 values we have to print, तो एक मदन हो जाएगा और दूसरा मोहन मालविया। अब अगर मान लीजिए आप इतना ही इंटरेस्टेड है कि आप केवल ये कमांड देते हैं कि 3, दैट मीन्स केवल केवल फोर्थ एलिमेंट में, क्योंकि स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, तो केवल फोर्थ एलिमेंट में वी विश टू स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स एंड वी विश टू प्रिंट ओनली 2 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। So now you see that we are confined now to this string only, and here 0 indicates that we have to start with index value 0, or 2 indicates ki how many values from that index onwards, only 2 values, so MO is only printed on the screen. So are you getting it कि अगर हमने यहाँ पे 3 कर दिया, इसका मतलब कि we are referring to a particular element of that array, so that is the last element obviously in case of str variable, और उसमें we are starting from the 0 index and we are totally taking 2 number of values from that index, तो इसलिए MO जो है वहाँ पे पिक किया है। Similarly further अगर आप इसको और modify करते हैं, let us suppose if I am making it 5 and 3, तो वो जो है मालविया में MA, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 5 पे जो है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 तक तो मोहन है, 0 1 2 3 4, 5 पे ब्लैंक स्पेस है और 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो ब्लैंक स्पेस M और A ये 3 एक्सेस हुए, तो उसमें केवल MA प्रिंट हुआ ऑन स्क्रीन, ब्लैंक स्पेस तो ब्लैंक स्पेस ही है, इज नॉट अपेरेंट ऑन द स्क्रीन। और अगर यहाँ पे if I give 6, तो ऑब्वियसली MAL वो आपका स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो ये क्लियर है आपको कि हम कैसे इसमें एक्सेस करते हैं। विल डिस्कस वन एग्जांपल। इसको मैं डायरेक्टली, अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं कि वी आर इनिशियलाइजिंग द एरे और द वैल्यूज आर असाइंड इन द बिगिनिंग ऑफ दैट एरे ओनली, बट वी कैन लेट द एरे टू बी ट्रीटेड एज ए वेरिएबल सो दैट upon getting a prompt the user has to enter the value. So this is what we do in normal programming. So let us suppose if I am executing this, I wish to assign 5 values to this array and do read
$i and then colon sign. तो ये इसके बाद suppose if I am writing str and then I am writing $i. See the difference. आपको ये difference थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा इस केस में कि str $i मैंने इसलिए किया क्योंकि I am interested to assign the value. I am not interested to access the value. तो पहले तो आप assign करेंगे. तो assign करने के पहले आप जानते हैं कि we are not writing $. I mean when we have to assign any value to variable a, what we are writing? We are writing read a. We are never writing read $a. But when we wish to print the value, we are writing echo $a. That means we wish to access the value stored in variable a. तो access करने के लिए dollar has to be preceded, but assign करने के लिए dollar is not needed क्योंकि वो तो हम ऐसे करते नहीं. तो यहाँ पे str अच्छा $i ब्रैकेट में क्यों लिखना जरूरी है? Because every time we need to generate a different index. तो str0, str1, str2. So with change of the value of I every time, we are generating a different variable which has to take the value from your side. So enter value $i, that is just to have a user-friendly prompt on the screen, so that enter value 0, enter value 1, this kind of prompt you start getting on the screen, and whatever value you are entering upon getting that prompt on screen, you have that is getting assigned to str0, str1, str2, and so on. So here we have assigned that, and after that, let us suppose I am giving done command. So it is simply executing, because the moment when you complete done, ये run होना शुरू हो जाएगा. तो आपने अगर कोई वैल्यू असाइन करनी, let us suppose मैंने असाइन किया 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26. अब अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं तो आई एम राइटिंग echo then $, then again since I wish to print all the values stored in variable a, तो ये यहाँ पे they are getting printed on screen. तो इसका मतलब है कि हम इसको जब वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें ये वैल्यूज असाइन कर रहे हैं और उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं. तो आपने जो पहले previously whatever value you have initially assigned to str array, they have been overwritten because now we have assigned some different values. अच्छा, once again in normal programming you know that the array is treated as a static variable. Whatever amount of RAM is assigned to it, that you cannot take back. Moreover, you might have written the program in data structure that if you wish to delete a particular element from an array, so the only way possible was to shift all the elements from that position onwards to one position upward in the array and reduce the length of that array. That's the only way by which we can assign. It's not possible that we can unset the variable or we can release the memory assigned to array. But here it is possible that we can unset the variable. We can write unset and str. So whatever values till now we have assigned to str variable, they have been unset. ठीक है. अगर again if I am executing that command, so nothing is printed on the screen because whatever value we have assigned to str variable, they have been vanished, they have been deleted because str itself has been unset. तो उसने सब रिलीज कर दिया जो उसके पास वैल्यूज थी. Again if I wish to repeat the previous operation, जैसे यहाँ पे था, तो इसको execute करता हूँ and let us suppose this time I am assigning miscellaneous values. ये मुझे थोड़ा सा इसमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने दिया है इनिशियलाइजेशन के समय तो ठीक है, बट यहाँ पे भी इट्स रिक्वायर्ड और नॉट. लेट मी चेक दैट. हाँ, यहाँ पे जो आप मदन मोहन दे रहे थे उसमें इन्वर्टेड कॉमा ना लगाइएगा. इनिशियलाइजेशन में तो लगाना पड़ेगा लेकिन यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा. Normally this is what we do in normal programming of C and C++ also. जब आप initialize करते हैं और कोई string value assign करते हैं तो you always write constant string between double inverted comma. लेकिन जब keyboard से assign करते हैं तो we never give it in between double inverted commas. We simply type the string and that string will be accepted as part of the particular variable. तो is it okay? यहाँ पे हम लोगों ने इसको असाइन कर लिया है. एक चीज मैं और एक चेक करके देख लेता हूँ. अनसेट str 0 1 2 3.
तो वो जो थर्ड वैल्यू 3 इंडेक्स के साथ थी, फोर्थ वैल्यू दैट वी हैव अनसेट। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी अनसेट हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ मदन 12, 16, मदन मोहन और 11 ये वैल्यूज असाइन थी। तो इसमें मदन मोहन जो था वो मैंने अनसेट कर दिया, तो वो रिलीज हो गया। तो बची कितना? मदन 12, 16 और 11। Now once again we are checking the dimension of this array. So we are getting 4, which is the right answer, because now we are having only 4 element left in the array str. It's Madan 12, 16 and 11. तो is it clear कि ये जो array के operations हैं, we'll see one example that I have written already. This is for sorting the program, sorting the values. ये एक प्रोग्राम है जो आप लोग नॉर्मली हम लोग सब भी अरे जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें प्रोग्राम में सॉर्टिंग करनी है। So how many element that we have taken in variable n? अच्छा, this way I believe is clear to everybody that we can make use of read, and there is no need to have explicit mention of echo just before read to get a user friendly prompt on the screen. आप read के अंदर ही you can include that message that you wish to appear on the screen at the time of giving the input. So that this is what you can do with -p option. देन ये फिर जो आपने n में वैल्यू असाइन करी है, दैट मेनी टाइम्स यू आर रनिंग द फॉर लूप, एंड यू नो दैट कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट दे आर रिप्लेस्ड विद डू एंड डन. सो हियर वी आर गेटिंग द एलिमेंट्स, द प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन. स्लैश सी इसलिए लगा रहे हैं ताकि हर बार जो है वो सेम लाइन में ही वो प्रॉम्प्ट आए. ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने अभी आपको प्रॉम्प्ट पे सीधे लिख के दिखाया था कि रीड -p, रीड -p एंड देन इसके बाद जो वैल्यूज हैं, तो जैसे इफ सपोज इफ आई एम राइटिंग एलिमेंट एंड देन $i. सो दैट इज रादर अ सिंपलर वे ऑफ डूइंग दिस ऑपरेशन. आप उसको सीधे लिख के और उसके बाद ai, अब ai को $i. अच्छा, यहाँ पे इट्स टेकिंग ai, तो मस्ट बी आई मस्ट हैव ट्राइड इट इन दिस केस. तो शायद इसने लिया होगा ai. बहरहाल just to avoid the confusion, it's better that since we wish to generate the index, so we have to put dollar before I. Even if it is working fine, that ai is okay, all right, because I must have tried it, and since it was working, that's why I would have taken ai directly. But anyways, this is also a one way which can replace these two statements together. इन दो स्टेटमेंट का रिप्लेसमेंट जो है वो केवल ये वाला रीड है. तो ये तो वैल्यूज रीड करने का एक तरीका हो गया. उसके बाद फिर द अनसॉर्टेड एरे. सो द एरे प्रिंटिंग ऑन द स्क्रीन, केवल इको से जो है इसको प्रिंट कर दिया. और इको में आप जानते हैं कि एवरी टाइम अ न्यू लाइन कैरेक्टर इज आल्सो एम्बेडेड बाय डिफॉल्ट. So all the values will be listed on the screen in different lines. Then we are performing the sorting. So again, we are selecting the element and comparing it with the remaining elements. So comparison, just for the comparison purpose, we have to access all the values one by one. So the inner loop is doing that operation. So with outer loop, we are having the index value I, and with inner loop, we are having the index value j. So we are simply picking up the first element, comparing it with the rest of elements. So the index values of rest of the elements is generated with the use of variable j. तो जब भी कभी ऐसा है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो if it is greater than the next element, so obviously we should swap the values. So you can again pay attention on the swapping, because it's the simple variable to which we wish to assign the value. तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा डॉलर के साथ, because by this way only you can access the value that we can assign to variable t. Then now this variable has become free, so we are writing $i, and we can assign $j to this variable. And now since $j has also become free, $j, so here we are assigning $t. So pay attention on this side where we are preceding a variable with $sign. अदरवाइज यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कहीं डॉलर नहीं लगाया है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पे तो आप वेरिएबल उसको ट्रीट कर रहे हैं जिसको वैल्यू असाइन करनी है. यहाँ पे आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ डॉलर प्रीसीड कराना जरूरी है.
तो ये सॉर्टिंग हो गई और उसके बाद सॉर्टेड अरे को वी हैव प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन इन द यूजुअल वे, जो आप जानते हैं. सो आई एम जस्ट सेविंग दिस प्रोग्राम कमिंग आउट ऑफ इट. और मैं किसमें राइट सेट कर दे रहा हूँ u प्लस एक्स sort dot sh. Now executing sort dot sh. Let us suppose 5 elements we are giving. Element 1 is suppose 12, then 3, then 2, then 5, then 1, and just a minute, something went wrong with this. अब ये सॉर्ट हो गया. उसमें मुझे याद आया कि मैंने क्यों उसमें वो लिखा हुआ था. अभी मैं फिर से आपको बताता हूँ उसको. हाँ, बहरहाल वंस अगेन लेट मी मूव बैक टू द प्रोग्राम जो हम लोगों ने कोड लिखा था. सब कुछ क्लियर है. जो कंफ्यूजन था वो यहाँ पे था. देखिए यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है उसको वी कैन राइट इन दिस वे आल्सो, जो हम लोग अभी तक का यूज करते आए हैं. और यहाँ पे इफ आई एम राइटिंग इन दिस वे, सो अगेन इसको, इस कंडीशन को हम यहाँ कैसे लिखते, दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. ये है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और फिर से लिखता हूँ, लेकिन हैश लगा के लिखता हूँ ताकि वो जो है एक कमेंट बन जाए. हमने चेंज क्या किया है, हमने चेंज किया है कि जो नॉर्मल कंडीशंस हम लिखते हैं डबल ब्रेसेस में, मैंने लिखा कहा था कि बैश में सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जावा और सी प्लस प्लस की तरह का स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं विदाउट वरीइंग फॉर द सिंटैक्स दैट इज बीइंग फॉलोड बाय नॉर्मल बोर्न शेल या कन्वेंशनल बोर्न शेल, कि वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से ही कंडीशन देते हैं. तो यहाँ पे हमने वो नहीं दिया और सीधे ये लिखा है. और अभी फिर से मैं एग्जीक्यूशन इसका देखता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग टू माय प्रोग्राम. सो इट्स वर्किंग फाइन और वो सॉर्टिंग हो गई. तो ये जो तरीका है स्क्वायर वाला, ये क्वेश्चन राइज होता है कि कब हम ऐसा यूज करते हैं. देखिए अभी तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, लेकिन क्यों किया था वो आई टेल यू लेटर ऑन. लेकिन आप ये जाने कि ऑपरेटर्स जो हैं बैश के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि सब सारे के सारे वही हैं जो हम लोग यूज करते आए हैं सी प्लस प्लस और जावा में, केवल एक डिफरेंस के साथ कि यहाँ पे अगर आप 2 डबल स्टार 3 लिखते हैं तो इसका मतलब है 2 raised to power 3. इफ यू रिमाइंड और रिकॉल, सो वी आर नॉट हैविंग रेज टू और पावर ऑपरेटर इन केस ऑफ जावा और सी प्लस प्लस. ठीक है, वहां पे आप जैसे सी में जो है वी आर यूजिंग POW फंक्शन, पावर फंक्शन, फॉर डूइंग द ऑपरेशन रेज टू. लेकिन यहाँ पे यू कैन डू दिस 2 डबल स्टार 3. तो ये तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गए जिसको सीधे हम लोग अब तक यूज करते आए हैं. और फॉर दैट मैटर ओनली इट हैज बिकम सिंपल दैट यू कैन मेंशन द कंडीशन लाइक फॉर एंड देन you can write the entire condition between double braces, small braces. That the single difference that you have to implement in case of bash. अब बाकी तो और कुछ नहीं करना था, सारा को वही सिंटैक्स है जो सी में है या सी प्लस प्लस या जावा में है. फिर तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद कौन से हुए, रिलेशनल हुए.
रिलेशनल में जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, तो वो सारे नोटेशंस वही हैं जो हम लोग यूज करते आए हैं। डबल ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो लिखते कैसे हैं जैसे अभी आप यूज करते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स में डबल एम्परसेंड साइन हम लोगों को मालूम है कि एंड के लिए होता है, और पाइपलाइन सिंबल जो है वो और के लिए होता है, तो वो भी हमें यहाँ पे यूज वैसे ही करना है। और निगेशन के लिए नॉट होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये भी वही है जो हम लोग यूज करते आए हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? देखिए, दो एडिशनल टाइप के यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए हैं। एक तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स दिए हैं और फाइल हैंडलिंग ऑपरेटर्स दिए हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स किस लिए होते हैं कि अगर हम स्ट्रिंग को कंपेयर करना चाहते हैं, आप याद करें अगर, तो सी में वी कैन नॉट मेक डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स। इफ एनी वेरिएबल इज हैविंग, say let us suppose a and then empty bracket is equal to, and within inverted commas you have assigned Madan. So Madan will be assigned as a string to variable A. दूसरा आपने B और स्क्वायर ब्रैकेट empty के साथ लिखा is equal to मालविया और डबल इनवर्ट कॉमा में, तो मालविया हैज बीन असाइंड टू वेरिएबल B। अब आप ये नहीं कर सकते A ग्रेटर देन B, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल जो है सीधे कंपेयर नहीं हो सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस इज यू हैव टू मेक यूज ऑफ द फंक्शन लाइक strcmp। तो इन द ब्रैकेट यू राइट strcmp के ब्रैकेट में A कॉमा B, so it returns the value if both of them are same, then it returns the true value, ठीक है। या जीरो रिटर्न करता है, और अगर इसकी वैल्यू जो है मतलब एक जो है वो A जो है B से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, और A अगर B से छोटा है तो निगेटिव वैल्यू। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि यू हैव टू मेक यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। एक्चुअली ये वही है जो बोर्ड में था, तो बैश में जो है उसको एज इट इज अडॉप्ट किया गया है। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का कंसेप्ट यूज करना जरूरी हो जाएगा, उसको जरूर यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने इससे पहले यहाँ पे जो ग्रेटर देन लिखा है, ये वाला नोटेशन लगा के, स्ट्रिंग में ये काम नहीं करेगा, तो स्ट्रिंग में ऑब्वियसली हमें इस तरीके से करना पड़ेगा जो इसके ऊपर किया था, ठीक है। अब इसमें तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं दैट विल डिस्कस शॉर्टली, और मे बी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको बता देता हूँ। अब आते हैं कि अगर हमसे कोई ये कहे कि वी हैव टू राइट अ सॉर्टिंग प्रोग्राम वेयर वी हैव टू अरेंज द स्ट्रिंग्स एज पर ASCII values. I mean, when I'm writing or accessing Amit over Anuj, so obviously Amit is smaller than Anuj. Reason being कि alphabet A both of the strings are having, but next character is in case of Anuj it is U, in case of Amit it is M. So in the collating sequence of ASCII, M is having the smaller value than U. So obviously Amit is smaller than Anuj. लेकिन आप अगर इसको सीधे कंपेयर करना चाहते हैं तो सीधे कंपेयर नहीं हो पाता है ASCII वैल्यू में, कोलेटिंग सीक्वेंस में। तो यहाँ पे आपको अगर स्ट्रिंग कंपेयर करना है इस तरीके से, तो आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ये एक बहुत स्पेशल केस है विच यू फाइंड, जो मुझे जो है क्वेरा से ही मैंने इसको लिया था, कि आप जब ऐसे कर देते हैं तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग का कंपैरिजन स्टार्ट करता है और उसमें उनके ASCII वैल्यू को भी कंसीडर करता है। तो सेम प्रोग्राम जो है सॉर्टिंग का, ये स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर जाएगा बिना किसी मॉडिफिकेशन के, और इस वाले स्टेटमेंट को हम कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये प्रोग्राम को हम स्ट्रिंग के लिए रन करके देखते हैं। सो आई एम जस्ट क्विटिंग दिस प्रोग्राम एंड री एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। तो sort.sh, so let us suppose 5, Anuj, जफर, सूरज, अमित, आलोक। फिर से मुझे एक बार चेक कर लूँ इसको, इसमें सीक्वेंस में चेंज नहीं आया, इसका मतलब कहीं पे कोई लॉजिकल एरर है उस प्रोग्राम में, जो मैं सही कर लेता हूँ।
सॉर्ट हो गया। तो उसमें केवल ये स्पेसिफिक केस है विच इवेंचुअली आई फाउंड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू टीच द सेम कंसेप्ट टू एमसीए स्टूडेंट्स। तो वहाँ ये हुआ था कि अगर हम स्ट्रिंग हैंडलिंग कर रहे हो और उसमें अगर सर हमें सॉर्ट करना हो तो कैसे हम ASCII कोलेटिंग सीक्वेंस पे करेंगे। सो दिस ऑपरेशन हैज बिकम वेरी सिंपल बिकॉज देयर आर एडवांस फीचर्स विच आर नेवर पब्लिश्ड in literature in the normal course. So this operator as such was not taught, but it was I have found it on Quora that if you make it more powerful, then you can make use of double square bracket and you can make the comparison of a string by just comparing the two values, and there it allows to make use of greater than sign rather than writing GT as we do in case of numeric comparison of square bracket. तो वहां पे ये GT की बजाय ग्रेटर देन अलाउ करता है स्ट्रिंग के लिए। तो यही कंसेप्ट मैंने यूज करके इस स्ट्रिंग को इस स्ट्रिंग जो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स है इसको सॉर्ट किया था। सो नाउ इट इज perfectly okay. We are getting the sorted array as Alok, Amit, Anuj, Suraj, Zafar in the collating sequence of ASCII values in the increasing order. So we have got that answer on the screen. तो is it okay? ये क्लियर है? एक बार मैं फिर से आपको वो प्रोग्राम दिखा देता हूँ। gedit sort.sh। केवल इतना अंतर है कि ये थोड़ा सा जो है कन्वेंशन से डिफरेंट है कि वी आर यूजिंग डबल स्क्वायर ब्रैकेट। आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, and whenever we are making square bracket we are not supposed to use this kind of operator. We have to write GT greater than in this way, GT greater than or equal to GE or less than तो LT, less than or equal to तो LE, equal to तो EQ, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू एनी। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये न्यूमरल्स के लिए था जो स्क्वायर ब्रैकेट था, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज जो है अब किस लिए करते हैं, क्योंकि हमने देखा अरिथमेटिक के लिए तो डबल ब्रेसेस वाला जो कंसेप्ट है वो चल जाता है। लॉजिकल के लिए जो है एंड और भी चलता है ये वाला, और तीसरा जो है रिलेशनल के लिए तो ग्रेटर देन सिंबल चलता है रादर देन राइटिंग GT। मैंने कहा था स्ट्रिंग में नहीं चलता है। तो स्ट्रिंग में अगर मान लीजिए मेरी कोई स्ट्रिंग है, लेट अस सपोज str जो है, पहले तो उसको अनसेट कर लो। लेट अस सपोज str को मैंने एक स्ट्रिंग असाइन करी मदन, ठीक है। अब अगर मैं ये चेक करता हूं कि मैं सिंपली ये चेक कर रहा था कि -z$str ये कंडीशन जो है ट्रू होती है केवल और केवल तब जब स्ट्रिंग जो है वो जीरो लेंथ की हो। जीरो लेंथ का मतलब है कि उसमें कोई वैल्यू असाइन ना हो, वो नल स्ट्रिंग हो। अच्छा, अभी मैंने एग्जीक्यूट किसमें किया? स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट जो है एक तरीके से एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन कमांड है। एक्चुअली होता क्या है कि जो शेल के प्रोग्राम्स हम लोग लिखते हैं उसमें अगर हम इफ के साथ कंडीशन लिखते हैं तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में तो कंपाइलर जो है जो कंडीशन आप देते हैं उसको इफ के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करके ट्रू और फॉल्स ले लेता है। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंसेप्ट है ये एक्चुअली ओरिजिनली एक टेस्ट कमांड हुआ करती थी जो केवल ये टेस्ट करती है कि कोई कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आई एम टेस्टिंग test -z$str and what is the result of my test that I can simply access with $? Because what आपको मालूम है कि $? से क्या होता है कि जो प्रीवियस कमांड का जो एग्जीक्यूशन स्टेटस है कि वो ट्रू थी, मतलब वो सक्सेसफुल थी या फेल्ड थी, तो वो यहाँ पे है। तो 1 का मतलब है कि वो फेल्ड थी क्योंकि हमने str में मदन डाल रखा है और हम ये चेक कर रहे हैं कि str जो है वो नल स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो अगर नल होती तो जीरो था। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से इसको एक्सेस करता हूँ इसी को टेस्ट को, और बजाय $str के मैं $s ले लेता हूँ जो वेरिएबल मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया। अब इसके बाद फिर से मैं लिखता हूँ इको $? सो वी हैव गॉट जीरो बिकॉज ये बस सच है कि s में जो है नल स्ट्रिंग है क्योंकि s इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो टेस्ट कमांड जो है ये कंडीशन को टेस्ट करती है और जो वैल्यू ये कैलकुलेट करती है उस वैल्यू के बेसिस पे ही इफ या व्हाइल ये सब चलते हैं। तो इफ के बाद इसीलिए जो है लिखा जाता है इफ टेस्ट, इफ देन टेस्ट और -z$s, इस टाइप में कंडीशन हम लिख सकते हैं। और लिखते हैं देन इको ट्रू एल्स इको फॉल्स
और अंत किससे, 5 से। तो ट्रू आ गया। आपने क्या किया, इफ टेस्ट माइनस जेड डॉलर एस, आपने टेस्ट कंडीशन जो है, टेस्ट कमांड चलाई, टेस्ट माइनस जेड डॉलर एस, उसने टेस्ट किया। उसने किसको टेस्ट किया, एस वेरिएबल को। तो क्या पाया कि वो तो नल स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ असाइन नहीं है, तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। तो इफ के बाद क्या मिला, इफ को ट्रू, तो उसने क्या प्रिंट किया, देन के बाद जो आपने दिया है। एल्स अगर वो कंडीशन फॉल्स होती, जैसे अगर मैंने टेस्ट माइनस जेड और डॉलर एस की जगह अगर डॉलर एस टी आर लिखा होता तो फॉल्स प्रिंट हुआ होता। जैसे वंस अगेन इफ आई एग्जीक्यूट एंड हियर आई एम चेंजिंग डॉलर एस विद डॉलर एस टी आर, तो अभी फॉल्स आ गया। तो ये जो टेस्ट कंडीशन थी, ये इनिशियली जब डिजाइन हुई तो फिर ये लगा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अकस्टम्ड हैं कि हम लोग कंडीशन हमेशा ब्रैकेट्स में देते हैं, तो टेस्ट का एक सब्स्टिट्यूट या एलियस बना और वो बना स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपका नेट इफेक्ट वही है जो आप टेस्ट को हम कैसे फिर अब लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेस्ट माइनस जेड और डॉलर एस टी आर। इसका नेट इंपैक्ट टेस्ट ही है, क्योंकि ये टेस्ट का ही एक और तरीका बन गया एलियस बन के उसका। तो अब इसको अगर हम एक्सेस करते हैं तो अगेन इफ वी आर टेस्टिंग डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्या मिला, 1, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। तो इज इट क्लियर कि हम या तो टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट से टेस्ट कर सकते हैं, दोनों का इफेक्ट सेम आता है। तो ये जो ऑपरेटर है माइनस जेड, ये माइनस जेड क्या करता है, इसके फॉलोइंग जो वेरिएबल होता है वो स्ट्रिंग टाइप होता है, कि वो स्ट्रिंग वेरिएबल जो है उसमें उसकी लेंथ जीरो है कि नहीं है। जीरो लेंथ कब होगी, जब उसमें नल कैरेक्टर होगा। अच्छा, उसकी वैल्यू नॉन जीरो कब होगी, इसका ऑपरेटर शायद माइनस एन होता है शायद, एक बार चेक करके देख लेता हूँ। यस, तो माइनस एन क्या करता है, चेक करता है कि जो डॉलर एस टी आर जो एस टी आर वेरिएबल है उसकी लेंथ जो है नॉन जीरो है कि नहीं। अगर नॉन जीरो है इसका मतलब वो नल स्ट्रिंग नहीं है, उसमें कुछ असाइंड है। तो आपको याद है कि एस टी आर में व्हाट आई हैव असाइंड, आई हैव असाइंड मदन। ये at this stage in this line you can see I have written str is equal to मदन, तो ये str वेरिएबल में मदन असाइंड है। तो यहाँ माइनस एन क्या कर रहा है, उसको चेक करके बता रहा है कि यस इट्स ट्रू, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन जीरो है। तो यहाँ रिटर्न क्या हुआ, जीरो। और पहले क्या रिटर्न हुआ था, 1, क्योंकि आपने तब टेस्ट क्या किया था कि वेदर द str variable has zero length string or not. So no, it was not having zero length string, it was having madan. So that's why we have got false. Now here in case of this we are getting true, so we are getting zero on screen. तो ये क्लियर है। और स्ट्रिंग कंपैरिजन भी करते हैं, अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन करते हैं कि स्ट्रिंग की वो कंपैरिजन अगर नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट में होता है तो केवल लेंथ वाइज होता है। तो हम अगर लिखते हैं डॉलर एस टी आर और इक्वल टू डॉलर एस, हमने दो स्ट्रिंग कंपेयर करी, डबल इक्वल टू और इक्वल टू दोनों चलता है। तो ऑपरेटर एक्सपेक्टेड, एक मिनट, if dollar str is equal to dollar s, then echo same, else echo। देखते हैं इसमें क्या एरर आ रही है कि क्या आती है एरर, और अंत किससे होगा, 5 से। इट इज एक्सपेक्टिंग यूनियरी ऑपरेटर। जस्ट अ मिनट, एक चीज एक और देख लें, क्योंकि वो नल स्ट्रिंग हो सकता है इसलिए दिक्कत कर रहा हो। मैं उसको इसको कोई वैल्यू दे के देख लेता हूँ। हाँ यस, इसीलिए आ रहा था। तो वो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग थी, उसमें कुछ असाइंड ही नहीं था। बहरहाल दो अब स्ट्रिंग अलग अलग हैं, एक में मदन है और एक में अनुज है।
और जब उनका हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये आया कि वो डिफरेंट है। आप चाहें तो सिंगल इक्वल टू के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, उसमें भी ये वर्क करेगा जो मैंने इसको यूज किया हुआ डिफरेंट। तो अभी और इसके अलावा एक चौथा ऑपरेटर और स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, नॉट इक्वल टू। तो आपका आंसर जो है सेम इसलिए आ गया क्योंकि आपने इको के बाद लिखा है कि यहाँ पे इको सेम। ठीक है, तो ये क्लियर है कि इफ $str इज नॉट इक्वल टू $s, अगर ये जो है दोनों स्ट्रिंग अगर नॉट इक्वल हैं तो देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा। तो हमने कितने ऑपरेटर्स पढ़े? 4। एक है -z, एक है -n, एक है इक्वल टू, या आप चाहें तो डबल इक्वल टू, और दूसरा नॉट इक्वल टू। ये 4 जो है स्ट्रिंग के लिए हैं, और आप इनका जब भी यूज करेंगे तो आपको क्या यूज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज अ थंब रूल। ठीक है, बाकी सब में आप वही यूज कर सकते हैं जो अब तक आप जावा में करते रहे, केवल इतना अंतर है कि दैट एक्सप्रेशन यू हैव टू राइट बिटवीन डबल स्मॉल ब्रेसेस, ऐसे लिखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वही है, लेकिन जब आप स्ट्रिंग हैंडलिंग करेंगे तो आप इसको यूज करेंगे। और उसके बाद आता है फाइल ऑपरेटर। जब आप फाइल ऑपरेटर्स का यूज करेंगे तब भी आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। तो फाइल ऑपरेटर वाला जो प्रोग्राम है या उसके जो कंसेप्ट हैं, विल डिस्कस टुमारो। And tomorrow I would like to have you physically in the classroom of this Karmarkar Hall. तो आप वहाँ आइएगा so that I can also check how much you have got conceptually. तो कोई प्रोग्राम की प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं. We can write certain programs and I can just check whether you are getting the concept or not. And if you are not getting, don't worry, I'll re-explain it. ठीक है? But ultimate objective is कि you should understand the concept of shell programming using bash. So is it okay? Yes, sir. So this program, I'm having certain programs which I have got from somewhere. So वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिख दूंगा, लेकिन don't rely on that code. आप अपनी ओर से लिखने की कोशिश करिएगा, because I never rely. मैं ही अगर एक प्रोग्राम को 5 बार लिखता हूँ तो every time I am using a different concept. ठीक है, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये चीज क्लियर होती चली जाएंगी। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि नॉट ओनली वी आर हैविंग द फ्लो कंट्रोल कमांड्स लाइक इफ, फॉर, व्हाइल, ठीक है, सिमिलर टू स्विच वी आर हैविंग केस। ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे है जो लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन उसके अलावा यू आल्सो हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग लिनक्स कमांड इनसाइड द शेल प्रोग्राम। तो बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे पाइपलाइन सिंबल यूज करके आपने यूज किया, और ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। तो विल सी सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर वी कैन मेक यूज ऑफ शेल कमांड्स और लिनक्स कमांड्स। ठीक है, तो उनके प्रोग्राम्स को हम लोग कल चेक करेंगे। So with this, I am ending my lecture here only. And if you are having any doubt, you can raise your query in tomorrow's class, and I will re-explain whatever I have explained earlier. So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.